کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس دن پوری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا اس دن کیا ہوگا؟ جس دن زمین اور آسمان دونوں اپنی شکلیں بدل دیں گے، جس دن سورج اپنی روشنی کھو دے گا اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے دن کے سفر پر جس کا نام ہے یوم القیامہ، دی ڈے آف ججمنٹ۔ یہ وہ دن ہے جس کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ جس کے بارے میں انبیاء اکرام نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا اور جس کی تفصیلات سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اے آئی کی مدد سے قیامت کے دن ہونے والے واقعات کی منظر کشی کرنے کی صرف کوشش کریں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے اس دن کیا ہوگا اے آئی تو کیا کوئی انسانی ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس عظیم دن کیا کچھ ہونے والا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ قرآن اور احادیث میں بیان کردہ قیامت کی ساری نشانیوں کے مکمل ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا حکم دے گا اور اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، تصور کریں کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئے گی۔ یہ آواز پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دے گی۔ وہ دن جمعے کا دن ہوگا کہ ایک سینگ میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نفخۃ الفنا اور نفخۃ الباعث۔ پہلی مرتبہ ایک فرشتہ حضرت اسرافیل کو اپنے پر سمٹتے دیکھ کر سور پھونکے گا تو سب جاندار ختم ہو جائیں گے یا پھر بے ہوش ہو جائیں گے۔ الغرض سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی یا پھر اللہ کے حکم سے عرش، کرسی، قلم، لوح، جنت، دوزخ اور روحیں فنا نہیں ہوگی۔ 40 سال بعد جمعے ہی کے دن ایک مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا اور اس مرتبہ حضرت اسرافیل خود سور پھونکیں گے، یعنی نفخۃ الباعث، تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ نفخۃ الباعث کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے جیسے موتی ٹوٹ کر بکھرتے ہیں، سورج لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی کپڑا لپیٹتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ زمین کا منظر یہ ہوگا کہ زمین کو ہلا ہلا کر رکھ دیا جائے گا۔ پہاڑ تو اتنے بڑے اور مضبوط لگتے ہیں وہ روئی کے کالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سمندر آگ کے انگارے بن جائیں گے، پوری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کو اس کے جسم، بالوں اور چمڑے سمیت دوبارہ اسی طرح کر دے گا جس طرح یہ ساری مخلوق پہلے تھی۔ زمین اندر سے ہل جائے گی اور تمام قبریں کھل جائیں گی۔ کروڑوں انسان جو ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں وہ سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قبریں الٹ دی جائیں گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوف زدہ ہو کر نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانے لگیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تمام انسان حیران اور پریشان ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں کس نے جگایا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں ہیں اور ہم نے کتنا وقت گزارا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ اس دن سارے لوگ ننگے پیر اور بے لباس ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں آگ کا سامنا کیا۔ سارے انسان ایک وسیع میدان میں جمع کیے جائیں گے جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔
सारी मखलूक को एक सुर्खी माइल सफेद जमीन पर इकट्ठा किया जाएगा। रब्बे दो जहां इस जमीन को चमड़े की तरह फैला देगा और वो जमीन आज की मारूफ जमीन की तरह नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला इस जमीन को दूसरी जमीन से तब्दील कर देगा। आसमान को भी इसी तरह तब्दील कर दिया जाएगा। ये मैदान इतना बड़ा होगा कि तमाम इंसानियत इसमें समा जाएगी। ये मैदान बिल्कुल हमवार होगा, कोई पहाड़, कोई गढ़ा, कोई बुलंदी नहीं। क़यामत के दिन हर मरहला पिछले से ज्यादा हैबतनाक और खौफनाक होगा। इसके बाद सूरज सर के ऊपर आ जाएगा। अंदाजा लगाइए कि आज सूरज तकरीबन 4000 साल की दूरी पर है और हमारी तरफ इसकी पीठ है। क़यामत के दिन सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और इसका मुंह हमारी तरफ होगा। क्या हाल होगा। हमारे भेजे गर्मी की शिद्दत से खौल रहे होंगे और इतना पसीना बहेगा कि 70 गज जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर जो पसीना जमीन ना पी सकेगी वो ऊपर की तरफ आएगी। वो पसीना किसी के टखनों तक होगा तो किसी के घुटनों तक पहुंच जाएगा। कोई कमर तक इसमें गर्क होगा तो कोई सीने तक इसमें तैर रहा होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे कि उनके गले तक पहुंच चुका होगा और काफिर के तो मुंह तक चढ़कर लगाम की तरह इसे जकड़ लेगा, जिसमें वो डुबकियां खाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे अमाल पर। अब लोगों के साथ उनके अमाल के हिसाब से मामला किया जाएगा। सजा या जजा अमाल को देखकर दी जाएगी। इस दिन किसी चीज का कोई साया नहीं होगा, लेकिन कुछ अहले ईमान ऐसे भी होंगे कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के साए में रखेगा। इस गर्मी की हालत में प्यास की क्या कैफियत होगी। हाल ये होगा कि जबानें सूख कर काटा हो जाएंगी। कुछ तो जबानें मुंह से बाहर निकल आएंगी। दिल मुंह को आए होंगे। लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक अजाब में होंगे। इस दिन कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा। बड़े मजबूत और गहरे रिश्ते इस दिन अपनी वक़्त खो देंगे। रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां किसी काम नहीं आएंगी। यहाँ तक कि सगे रिश्तेदार जो दुनिया में एक दूसरे को देखकर जीते थे, इस दिन एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे। भाई भाई से भागेगा, माँ औलाद से पीछा छुड़ाएगी तो औलाद माँ से दौड़ेगी। बाप बच्चों से बेजार होगा तो बच्चे बाप से भागेंगे। बीवी शौहर से भागेगी तो शौहर बीवी से भागेगा। आखिरकार कोई किसी की मदद करने को तैयार ना होगा। हर जान नफ्सी नफ्सी पुकारेगी। हर शख्स सिर्फ अपनी ही फिक्र में होगा। किसी दूसरे से इसे कोई सरोकार ना होगा। यह मुसीबतें चल ही रही होंगी कि जहन्नुम को लाया जाएगा। इसके भड़कने से मखलूक के दिल दहल जाएंगे। मुकर्रब फरिश्ते और अंबिया तक इससे पनाह मांगेगी और हर एक आफियत मांगेगा। हर तरफ नफ्सी नफ्सी का समा होगा। अब आएगा वो लम्हा जब हर शख्स को इसकी जिंदगी की कंप्लीट रिकॉर्ड बुक यानी नामे अमाल दिया जाएगा। नेक लोगों की किताब उनके दाने हाथ में दी जाएगी। वो खुशी से कहेंगे, आओ मेरी किताब पढ़ो, मुझे यकीन था कि मैं अपना हिसाब पाऊंगा। बुरे लोगों की किताब उनके बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दी जाएगी। वो कहेंगे, काश मेरी किताब ना दी जाती, काश मैं अपना हिसाब ना जानता। अब लगाया जाएगा वो मीजान यानी तराजू जो इंसाफ की अलामत है। वो मीजान यहाँ की तराजू के खिलाफ हो। वहां नेकियों का पल्ला अगर भारी होगा तो ऊपर उठेगा और बदी का पल्ला नीचे की तरफ झुक जाएगा। और इस मीजान की निगरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जबकि अमीन हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम होंगे। इसमें एक एक करके हर शख्स के अमाल को तोला जाएगा। नेक अमाल इतने हल्के लगते हैं लेकिन मीजान में भारी होंगे। बुरे अमाल इतने भारी लगते हैं लेकिन मीजान में हल्के होंगे। यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि बाज छोटे से अमाल जिनको हम मामूली समझते हैं वो मीजान में बहुत भारी साबित होंगे। इस वक्त अंबिया इकराम, सालिहीन, हफ्फाज और शहदा अल्लाह ताला से इजाजत लेकर बाज लोगों की सिफारिश करेंगे। सबसे अजीम शिफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी जिन्हें मकामे महमूद दिया जाएगा। अब जहन्नुम के ऊपर एक पुल लगाया जाएगा जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। यही है पुले सिरात। अब शुरू होगा मुश्किल इम्तिहान। हर शख्स को इस पुल से गुजरना होगा। हर एक की रफ्तार इसके अमाल पर मुनासिर होगी। बाज पलक झपकने में पार हो जाएंगे, बाज लाइटनिंग स्पीड में, बाज घोड़े की रफ्तार में, बाज चलकर पार करेंगे और बाज घिसट कर। लेकिन बहुत से वो होंगे जो कट कर नीचे गिर रहे होंगे और नीचे होगी जहन्नम की भड़कती हुई आग जिसे इंसानों और पत्थरों के ईंधन से भड़काया जा रहा होगा।
जो लोग पुले सिरात पार कर जाएंगे उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज कौसर पर पानी पिलाया जाएगा। ये पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो इसे पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। आखिर में अल्लाह ताला का आखिरी और मुतलक फैसला आएगा। जन्नतियों को कहा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, आज ना तो तुम पर कोई खौफ है और ना तुम गमगीन होगे। जहन्नमियों को कहा जाएगा, आज तुम्हारी सजा का दिन है। कोई जन्नत में हमेशा की खुशियों की तरफ और कोई जहन्नुम हमेशा के अजाब। एक हैरत अंगेज बात यह है कि रोज़े क़यामत जानवरों का भी हिसाब होगा। अगर एक बकरी ने दूसरी बकरी को सींग मारा हो तो इसका बदला लिया जाएगा। तो ये है वो अजीम दिन जिससे कोई बच नहीं सकेगा। ये वो दिन है जब तमाम मास्क उतर जाएंगे, तमाम छुपे हुए राज खुल जाएंगे और हकीकी इंसाफ होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है अपने अमाल को दुरुस्त करने का, अल्लाह से तौबा करने का, नेक काम करने का, क्योंकि जब ये दिन आएगा तो फिर कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा और कोई वापसी नहीं होगी। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा अमाल नामा ऐसा है कि हम उस अजीम दिन अल्लाह के रूबरू शर्मिंदा ना हों? याद रखें, ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो जरूर आने वाली है, और जब आएगी तो हर इंसान कहेगा, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए आगे भेजा होता। लेकिन तब वक्त खत्म हो चुका होगा। आज वक्त है, आज मौका है, कल बहुत देर हो जाएगी।